كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها واللہ خبیر بما تعملون. اور جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر وہ کہے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میں تیرے رستے میں صدقہ بھی کروں گا اور نیک بھی بن جاؤں گا. ہرگز ہرگز اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جان کو مہلت نہیں دیتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے بہت ہی باخبر ہے. حضرات گرامی قدر، محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ چوتھا اور ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو. ابھی کل کی بات ہے، رمضان شروع ہوا تھا اور آج ختم ہونے کو قریب ہے. یہ رمضان کیا زندگی ختم ہونے کو قریب ہے. معلوم نہیں کس پل جو ہے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے. یہ رمضان کی بھی چند گھڑیاں ہی ہیں اور زندگی کے بھی چند لمحات ہی ہیں. یہ غنیمت ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لیں. آؤ اپنے رب کو راضی کر لیں اور اسے منا لیں، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں اور اس کو راضی کر لیں کہ وہ ہمیں جنت عطا کر دے اور اپنی جہنم کو ہمارے اوپر حرام کر دے. یہ لمحات بہت تھوڑے ہیں، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے یہ لمحات جو ہے وہ بیت جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. انسان کو سمجھ اسی وقت آتی ہے جب ان چڑیاں جو ہے وہ کھیت چگ جاتی ہیں، لیکن اس وقت سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور اس وقت انسان اپنے ماضی کا جو معاملہ ہوا ہے اسے سدھارنے کی طاقت جو ہے وہ نہیں رکھتا ہے. اس لیے یہ رمضان کے چند لمحات ہیں. 2 راتیں طاق گزر چکی ہیں اور 5 راتیں مزید جو ہے وہ باقی ہیں. بڑی تیزی سے گزر جانی ہے، معلوم نہیں اس میں لیلۃ القدر کہاں پہ ہے، گزر گئی ہے یا گزرنے والی ہے. مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. ایک مومن وہ صرف لیلۃ القدر کو نہیں دیکھتا کہ لیلۃ القدر آئے گی تو میں نے عبادت کرنی ہے اور وہ لیلۃ القدر نہیں آتی تو میں نے عبادت نہیں کرنی ہے. مومن اپنی زندگی کے لمحات کو دیکھتا ہے. بسا اوقات زندگی کا ایک لمحہ
جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر لیتا ہے وہ لیلۃ القدر سے افضل بن جاتا ہے. اور بسا اوقات پوری رات لیلۃ القدر جس کے بارے میں انسان کو خبر ہی نہیں اور اس میں وہ کچھ کر ہی نہیں رہا، وہ اس کے لیے وہ زندگی کے اس چھوٹے سے لمحے سے کہیں نیچے جو ہے وہ رہ جاتی ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ صرف طاق راتوں میں عبادت نہ کیجیے. ٹھیک ہے یہ راتیں بڑی عظمت والی ہیں، زندگی کا ہر لمحہ ہی بڑا قیمتی ہے، اور بالخصوص رمضان کے لمحات یہ سارے بڑے قیمتی ہیں. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معمول کی باتیں ہیں لیکن بڑی قیمتی باتیں ہیں، بڑی ضروری باتیں ہیں. ان تمام لمحات کو ہم اپنا قیمتی بنا لیں. جو بھی وقت گزر رہا ہے کیوں معلوم نہیں، جو سانس آ گیا ہے اس کے بعد دوسرا سانس بھی آنا ہے یا نہیں آنا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. تو ہر وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں گزر گیا، توبہ استغفار میں گزر گیا، تلاوت میں گزر گیا، دعاؤں میں گزر گیا، وہ انسان کے لیے لیلۃ القدر ہی ہے، وہ انسان کے لیے کامیابی کا ضامن ہی ضامن ہے. اور وہی گھڑی جو ہے وہ قیامت کے دن کام آ جانے والی ہے. اور وہ رات چاہے لیلۃ القدر ہی کیوں نہ ہو، ضائع کر دی، گپیں لگاتا رہا اور جو ہے وہ ادھر ادھر فضول کاموں میں ٹائم ویسٹ کرتا رہا تو وہ رات جو ہے وہ کام نہیں آ سکے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ان اوقات کو قیمتی بنائیں. کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ. 3 کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے. نمبر 1، شد مئزرہ، اپنا لنگوٹ کس لیتے، اپنی آستینیں چڑھا لیتے. یہ کنایا ہوتا کہ فضول کاموں سے گریز کرنا ہے، جو کام کرنا ہے ساری توجہ اس پہ لگ جائے. جس وقت انسان عید قربان کے موقع پر جانور قربان کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے، اپنے بازو جو ہے وہ اوپر چڑھا لیتا ہے، کوئی قمیض کا کنارہ ادھر ادھر بکھرا اس کو لپیٹ لیتا ہے، اور اس وقت چھری ہاتھ میں پکڑی ہے، کال آتی ہے تو کال سنتا ہے، جانور لٹا لیا ہے، کوئی پیچھے سے آوازیں دے تو سنتا ہے. سارے کام چھوڑ کر انسان اپنے کام کے اوپر متوجہ ہو جاتا ہے. یہ مقصود ہے شد مئزرہ، کہ انسان مکمل اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے وہ توجہ کرے اور اپنے رب کو جو ہے وہ منانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے. نمبر 2، لوگوں اپنے گھر والوں کو بھی جگائے. آپ سلم آخری راتوں میں، صرف آخری طاق راتوں میں نہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں میں نہیں، بلکہ تمام راتوں میں جیسے ہی آخری عشرہ داخل ہو جاتا آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے لوگو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور اس کے اوپر بڑے سخت قسم کے فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جن کے دل میں ذرہ برابر بھی نرمی نہیں پائی جاتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو ان کو حکم ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اور وہ سزا کے لیے متعین ہے. والعیاذ باللہ وہاں صرف اور صرف سزا ہی کا معاملہ ہوگا. فرمایا لوگوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. رات کو خود بھی اٹھو اور ایقظ اہلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کو بھی جگاتے، ان کو بھی جگاؤ. اللہ کے بندو اٹھو، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ گپیں لگانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ ناول اور کہانیاں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ فیس بک اور واٹس ایپ دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. آؤ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں اور ان کو عبادت پہ لگائیں. آپ کا لگانا ہی آپ کی نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا.
وہ करते हैं नहीं करते हैं ये एक अलग मसला है। आपने जब कोशिश कर दी है और उनको मायल कर दिया है, आपका यही अमल अल्लाह के दरबार में कबूल हो गया तो आपकी निजात का जरिया बन जाएगा। तीसरा अमल जो है अहया लैलहू, अपनी रात को इबादत में सरफ की। आप सारी रात इबादत करते थे, सारी रात, कोई और दूसरा काम नहीं करते थे, पूरी पूरी रात। हदीस में आता है रमजान के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात कभी इबादत नहीं, कुछ हिस्सा आराम करते, कुछ हिस्सा इबादत करते, अपने घर के कामकाज करते। लेकिन जैसे ही रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो जाता, आखिरी ताक रातें शुरू हो जाती, नहीं, आखिरी अशरा शुरू हो जाता, तो रमजान की तमाम रातों में आप अल्लाह तबारक व तआला की पूरी रात जाकर जो है वो इबादत करते। क्या हम भी करते हैं? 21वीं में 23वीं में ताक रातों में कोशिश होती है कुछ जाग लिया जाए, वगरना दूसरी रातों में आज कौन सा कोई ताक रात। पहली बात तो यह है कि हमें क्या मालूम कि ताक रात कौन सी है। चांद के बारे में तो आप खबरें सुनते रहते हैं, कभी कभी खुद चढ़ता है और कभी कभी लोग चढ़ा देते हैं, और फिर तारीख आगे पीछे हो सकती है, जिसकी वजह से लैलतुल कदर भी आगे पीछे हो सकती है। यही मकसूद है कि लोगों 10 की 10 रातें इबादत करो ताकि आपको कंफर्म जो है वो लैलतुल कदर जो है वो मिल जाए। इसलिए पूरी रात, रमजान की तमाम रातें इबादत में सर्फ करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जो है वो इबादत किया करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे, नवाफिल पढ़ा करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, दुआएं किया करते थे। ये मामला किस कदर अजीम है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। वो नेक लोग जो अल्लाह के बंदे हैं, उनके पहलू नरम गरम बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। वो बिस्तरों पे लेटते नहीं हैं, बल्कि रात को उठ जाते हैं और उठकर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। तुझे मालूम है अल्लाह ने ऐसे अपने बंदों के लिए कैसे इनामात तैयार कर रखे हैं। ला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम, किसी बंदे को हमने इल्म दिया ही नहीं है ऐसे बंदों की राहत का, खुशी का और उनकी मुसर्रत का और उनके इनामात का हमने क्या इंतजाम कर रखा है, ये किसी आदमी को मालूम नहीं, ये सिर्फ हमें मालूम है। जब हम उसको अजर देंगे तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना जो है वो बाकी नहीं रहेगा। लोगों, ये रातें बिस्तरों पे गुजारने वाली नहीं है, बल्कि मसल्ले पे गुजारने वाली हैं, जाए नमाज पे गुजारने वाली हैं, जिक्र अस्कार में गुजारने वाली हैं। 3 काम। चौथा काम ये है, ये आखिरी अशरे में एतकाफ बैठा जाता है। एतकाफ बैठने का मकसद भी यही है, लैलतुल कदर मिल जाए। 83 साल की इबादत से ज्यादा अजर है। आप अंदाजा करें, जिस बंदे को लैलतुल कदर मिल जाती है, क्या उसकी बख्शिश नहीं होगी जब उसने इबादत की है? यकीनन बख्शिश हो जाएगी। जिस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला 83 साल से ज्यादा इबादत का अजर अता फरमा रहे हैं, उसकी बख्शिश नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? यकीनन उसकी बख्शिश हो जाएगी। फरमाया लोगों एतकाफ बैठो। आप सल्लम जो है वो तकरीबन मदीना में हर साल एतकाफ करते रहे, और जिस साल फौत हुए उस साल जो है आपने 20 दिन का एतकाफ किया। 20 दिन का जो है वो एतकाफ किया। गोया कि एतकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा है। ये सिर्फ सुन्नत नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन हम जो है जहां कहीं कोई मतलब होता है तो एतकाफ कर लेते हैं, क्या मतलब नहीं होता वहां कौन बैठता है? अगर एसी ना चले गर्मियों के दिनों में, उस मस्जिद में कोई बंदा एतकाफ बैठता ही नहीं। वो कहते हैं यहाँ पे तो एसी नहीं है, यहाँ पे तो फलां चीज नहीं है। तो ऐसा नहीं है। एतकाफ जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। एसी हो या ना हो, दूसरी सहूलियात हो या ना हो, इंसान को अल्लाह को राजी करने के लिए एतकाफ करना चाहिए। एतकाफ का बुनियादी मकसद क्या है? जिसको सारी जिंदगी टाइम नहीं मिला वो अपने मोतकफ में जाकर जो है वो सो जाए, अपनी मोतकफ में जो है वो मीटिंग रूम बना ले, लोगों को बुला ले, जमघटा कर ले और सारी रात और सारा दिन जो है वो गप्पे लगती रहे। नहीं, कतन नहीं। ऐसे काम के लिए एतकाफ नहीं किया जाता। मोबाइल लेकर बैठ जाए और जो देखना चाहता है वहां पे अलहदा बैठा देखता रहे, कौन कुछ देख रहा है। पर मैं नहीं, इस काम के लिए एतकाफ नहीं है। एतकाफ का मकसद क्या है? सारी दुनिया से मुनक़ते हो जाओ,
कट जाओ और एक अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ लो। गोया के दूसरे लफ्जों में, जैसे मुआशरे में, जमहूरी दौर में लोग किसी असेंबली हॉल के सामने जाकर धरना दे देते हैं, हमारा काम कीजिए नहीं तो हम यहां से नहीं जाएंगे, ये भी एक किस्म का अल्लाह के दरबार में धरना ही देना है। या अल्लाह तेरे दर पे आ गया हूं, एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 9 दिन, 10 दिन और 10 रातें तेरे सामने मैं धरना दे रहा हूं। या अल्लाह तू अब भी माफ नहीं करेगा, या अल्लाह तू अब भी मुझसे राजी नहीं होगा, या अल्लाह फिर तू कब राजी होगा? उससे बड़ा बदनसीब इंसान कौन हो सकता है? 10 दिन का इत्काफ भी कर ले और उसे पता ही ना चले कि मेरा रब मुझसे राजी हुआ कि नहीं हुआ। इंसान अमल करे, उसे खुद यकीन होता है, तसल्ली होती है, मैंने अपने रब को राजी करने की कोशिश की है, यकीनन वो राजी हो जाएगा। लेकिन जैसे आया था वैसे ही उठकर चला गया, गप्पे लगाता रहा, दिल के ऊपर, जिस्म के ऊपर कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई, तो समझ ले उसका इत्काफ किसी काम का नहीं है। इत्काफ का मकसद यही है, इंसान गुफ्तगू ना करे, लोगों से कट जाए। गुलूब है, कुछ लोग तो बुर्का पहन लेते हैं कि चेहरा भी नजर ना आए, और कुछ लोग जो हैं वो हर वक्त बातें करते रहते हैं। दोनों ही गुलूब है। किसी से बात करना भी दुरुस्त नहीं, बहुत शदीद मामला है कर लें, कोई जरूरी मामला 1 आध मिनट में, 2 मिनट में बात करें और उसे छुट्टी दे दें और अपने जाए रूम में, अपने जाए इत्काफ में चले जाएं, वहां पे बैठ के अल्लाह की इबादत करें। और ये पर्दा वगैरह करने का शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। आप असल में इत्काफ में जाते थे, मस्जिद में आते, नमाज पढ़ते, फिर चले जाते, आपने कभी पर्दा नहीं किया। मकसूद सिर्फ दुनिया से मुनकते होना है कि इंसान सारे काम छोड़कर अपने रब को जो है वो राजी होने के लिए बैठ जाए। इसलिए अपने इत्काफ वाली जगह में बैठ के इबादत करे, कुरान पढ़े, जिक्र अज़कार करे, तिलावत करे, दुआ मांगे, अपने गुनाहों को याद करे और अल्लाह से माफी मांगे। और ये सिर्फ इत्काफ में नहीं, ये घर में भी हो सकता है। अगर कोई इत्काफ में बैठा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठा है तो अपने कमरे में, अपनी अलग जगह पे जाए नमाज बिछाकर उस पर बैठ जाए और अल्लाह को याद करे। जो भी काम मस्जिद में बैठ के कर सकता है वो घर में कर ले। ठीक है, उसे इत्काफ का सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला के राजो नियाज की महफिल जो है वो उसको हासिल हो जाएगी और अल्लाह को इंसान जो है वो राजी कर सकता है। 4 काम, 5वां काम जो है वो करने वाला है इस रमजान में, वो कुरान मजीद की तिलावत है। लोगों, कुरान मजीद की तिलावत करो, कसरत से करो, बहुत ज्यादा करो। कुरान का रमजान से बड़ा गहरा ताल्लुक। कुरान रमजान में नाज़िल हुआ और आप सल्लम जिब्रील को सुनाया करते थे, जिब्रील सुना करते थे। आखिरी साल आपने 2 मरतबा मुज़ाकरा किया, 2 मरतबा कुरान सुनाया और 2 मरतबा सुना। इससे मालूम हुआ कुरान खत्म करना चाहिए। ये कोई फर्ज है? हर चीज फर्ज नहीं की जाती, बहुत सारे गैर फर्ज काम भी किए जाते हैं। फर्ज तो ड्यूटी होती है, वो तो हमने अदा करनी है, उसमें तो कोई चारा ही नहीं होता। नफल काम करने होते हैं अगर अल्लाह को राजी करना है, अपने रब के करीब होना है तो नफली और इस्तेहबाब वाले काम जो है वो करने हैं। सुन्नत वाले काम जो है वो इंसान करता है। मैं तो कहा करता हूं, सालन में घी डालना फर्ज है, पानी में उबाल के खा लो। मिर्चें डालनी और नमक डालना तो फर्ज है, किसने कहा है? सालन में ये तड़का लगाना जो है वो फर्ज है, किसने कहा है? कोई चीज फर्ज नहीं। अपने जायके के लिए, अपने खाने के हुस्न में जो हुस्न को दोबाला करने के लिए इंसान सब चीजें जो है वो डालता है ताकि ये चीज ज्यादा मजेदार बन जाए। इसी तरीके से इबादत में हुस्न पैदा करने के लिए ये नवाफिल का इस्तेमाल करना पड़ता है, नफली इबादत का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिस कदर इंसान नफलों में आगे बढ़ता चला जाता है उसकी इबादत में खूबसूरती पैदा होती चली जाती है, वो अल्लाह के नजदीक होता चला जाता है। इसलिए कुरान मजीद कसरत से पढ़िए, खत्म कीजिए, खत्म हो जाए दोबारा खत्म कीजिए। बाज़ उलमा ने कहा 3 रातों से कम में आपने मना किया है कि खत्म ना किया जाए, लेकिन ये आम हालात में 3 रातों से पहले कुरान नहीं खत्म करना चाहिए। अगर फजीलत वाली जगह है या फजीलत वाला वक्त है तो उसमें इंसान ज्यादा पढ़ सकता तो पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं। मसलन बैतुल्लाह में बैठा हुआ है, इत्काफ में बैठा हुआ है, रमजान की आखिरी रातों में मस्जिद में बैठा हुआ है, तो ये वक्त है, ज्यादा भी पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं। आम दिनों में 3 रातों से ज्यादा जो है वो पहले खत्म नहीं करना चाहिए। इसलिए कुरान मजीद खत्म कीजिए। लोगों, कुरान मजीद पढ़ने से मैंने दुरूस में जिक्र किया था
इंसान का दिल मजबूत होता है, अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होता है, अल्लाह की नुसरत जो है वो हासिल होती है, इंसान को यकीन की कैफियत हासिल होती है, इंसान को अपने रब के ऊपर एतमाद जो है वो मजबूत हो जाता है, दुनिया से इंसान मुस्तगनी हो जाता है। अगर कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़ा जाए, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ा जाए, इसके बेशबहा फायदे हैं, इंसान सोच नहीं सकता। ये रिज़्क में बरकत देता है, औलाद में बरकत देता है, घर में बरकत देता है, लेकिन अफसोस कि हमसे पढ़ा नहीं जाता, ये हमसे पढ़ा नहीं जाता। फरमाया लोगों कुरान पढ़ो, घर में बरकतें नाज़िल होती हैं, शयातीन घरों से भाग जाते हैं, जिन्नों का, जादूगरों का और नजरे बद वालों का साया दूर हो जाता है। पढ़िए तो सही, कुरान मजीद तो पढ़िए सही। ये कुरान मजीद गुलाफ में लपेटने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, ये लपेट कर जो है वो संभाल कर रखने के लिए नाज़िल नहीं हुआ। ये कोई अदब नहीं है कि सोने का, रेशम का लिबास जो है वो बनाकर कुरान को लपेट कर ऊपर वाले रखने में जो है वो रख दिया जाए, ये अदब नहीं है। इसका अदब असल क्या है, इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, इसके ऊपर अमल किया जाए, ये इसका असल अदब है। ये लोगों की जिंदगियों को बदल के रख देता है। फरमाया लोगों जिंदगियां भी बदल जाएंगी और क़यामत के दिन सबसे बड़ा सिफारिशी कुरान मजीद बनकर आएगा, सबसे बड़ा सिफारिश। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। लोगों ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा, और ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। ये कुरान मजीद मखलूक नहीं है, ये कागज जो है ना ये मखलूक है, ये स्याही मखलूक है, लेकिन इसके जो हुरूफ हैं, अल्फाज हैं, ये मखलूक नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफ़त है। गोया कि अल्लाह का एक हिस्सा जो है वो अल्लाह से सिफारिश करेगा, या अल्लाह इसको माफ कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने आप से कहे इस बंदे को माफ कर दे, फिर वो माफ नहीं करेगा। ये कैसे हो सकता है? कुरान मजीद की सिफारिश यकीनी है, जिसके हक में कुरान ने सिफारिश कर दी यकीनन वो बख्शा जाएगा, यकीनन वो जन्नत में चला जाएगा और जहन्नम से जो है वो आजाद कर दिया जाएगा। इसलिए कुरान मजीद को जो है वो पढ़िए, कसरत से पढ़िए और कोशिश कीजिए समझ कर पढ़िए। कुरान मजीद को अपनी जिंदगी के मुताबिक ढालिए, अपनी जिंदगी को बनाइए, इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश कीजिए। आपके घरों में देखिए नूरानियत पैदा हो जाएगी, सकीनत नाज़िल होगी, आपको नूर नजर आएगा, रोशनी नजर आएगी, घर का माहौल जो है वो पुरसुकून नजर आएगा। कब? जिस वक्त इस कुरान मजीद को वाकई दिल लगाकर पढ़ा जाए, सोच समझ कर पढ़ा जाए और मजे के साथ पढ़ा जाए, और अल्लाह की किताब और अल्लाह का कुरान समझ कर जो है वो पढ़ा जाए। इसलिए इत्काफ में बैठने वाले, ना बैठने वाले, इन रातों से फायदा उठाने वाले खूब कुरान मजीद की जो है वो तिलावत कीजिए, जितनी हो सकती है इसकी तिलावत करने की कोशिश कीजिए। और इसी तरीके से इस वक्त में जो चंद लम्हात हैं, चंद घड़ियां हैं, उनमें जो है वो जिक्र और अस्कार कीजिए, जिक्र और अस्कार कीजिए। मोमिन का मजबूत तरीन असलहा, अल्लाह के साथ सबसे ज्यादा ताल्लुक जोड़ने वाला सिलसिला वो जिक्र का है। लोगों अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। फरमाया तुम किसी महफिल में याद करते हो, मैं भी तुम्हें महफिल में याद करता हूं। तुम मुझे अपने दिल में याद करते हो, तो मैं भी अपने पास तुम्हें याद करता हूं। मैं तुमसे वैसे ही गाफिल नहीं, लेकिन जो बंदा मुझे जिक्र करता है, मुझे याद करता है, मैं उसे खास तौर पे याद करता हूं। लोगों जिक्र जो है ये सबसे अफजल अमल है, सोना चांदी खर्च करने से भी ज्यादा अफजल है। लोगों ये सोना चांदी खर्च करने से भी ज्यादा अफजल है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी ज्यादा अफजल है। इंसान सोच नहीं सकता ये किस कदर अफजल अमल है। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था या अल्लाह जिक्र बतला दो, कोई खास वजीफा बतला दो, और मैं मूसा ला इलाहा पढ़ा कहा या अल्लाह ये तो सारी दुनिया पढ़ती है। कहा मूसा तुझे भी पता नहीं, सारी दुनिया पढ़ती है, फिर क्या हुआ? इससे ज्यादा अफजल जिक्र और अफजल वजीफा कोई है ही नहीं, इससे ज्यादा अफजल जिक्र और अफजल वजीफा कोई नहीं है, ये सबसे अफजल जिक्र है। आपने वो हदीस सुन रखी है, 99 रजिस्टर एक पलड़े में डाल दिए जाएंगे, एक छोटी सी पर्ची जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा दूसरे पलड़े में डाल दी जाएगी, और वो पलड़ा जो है वो क्या है, भारी हो जाए। वो 99 स्याहियों के रजिस्टर, खताओं के रजिस्टर, गुनाहों के रजिस्टर वो हल्के पड़ जाएंगे,
اور یہ لا الہ الا اللہ والا رجسٹر جو ہے، یہ پلڑا جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا۔ سب سے افضل ذکر ہے، کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا تھا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ فرمایا یہ کلمہ دن میں ایک دفعہ مجھے پڑھ لینا، ساری کائنات کی جو دولتیں ہیں ان سے کہیں زیادہ مجھے پیارا۔ مجھے ساری دنیا کی دولتیں دے دی جائیں اور مجھے کہا جائے ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لو، میں اس کے پڑھنے کو ترجیح دوں گا، دنیا کی دولتیں لینے کو ترجیح نہیں دوں گا، یہ اس سے کہیں زیادہ افضل۔ لوگ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اٹھتے بیٹھتے یہ ذکر نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں، تو نقائص سے، کمیوں سے، شرک سے، ہر چیز سے پاک اور مبرہ ہے۔ الحمدللہ، یا اللہ میرے اندر جتنی صلاحیتیں اور قوتیں اور جتنی نعمتیں تو نے دے رکھی ساری تیری ہیں، اس کائنات میں جتنے انعامات اور احسانات ہیں سارے تیرے ہیں۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو ساری کائنات سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو سب سے عظیم ہے اور سب سے بڑا ہے اور سب سے سپر پاور ہے اور سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی کو سجدہ نہیں کرتا، کسی کے نام کی نظر نہیں دیتا، کسی کے نام کا چڑھاوا نہیں دیتا، کسی کے نام کی منت نہیں مانتا۔ یا اللہ جتنی بھی عبادتیں ہیں صرف اور صرف تیرے لیے ہیں، تیرے سوا میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ نیکی کرتا ہوں تو تیری توفیق سے کرتا ہوں، برائی سے بچتا ہوں تو تیری توفیق سے بچتا ہوں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ یا اللہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں مسجد میں تو میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بھی تیری توفیق ہے، اس تیری توفیق میں بھی تیرا ہی شکریہ جو ہے وہ ادا کرتا ہوں۔ اگر یہ کلمات انسان تھوڑا سا اتنا ہی ترجمہ جو میں نے ذکر کیا ہے، اس کا معنی تو بڑا وسیع ہے، لیکن اتنا ہی ترجمہ جو میں نے ذکر کیا ہے، ان معانی کو ذہن میں رکھ کر اگر یہ کلمات کہہ دیتا ہے، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا رب جو ہے اس بندے سے راضی نہ ہو، اس بندے کو جو ہے وہ معاف نہ کر دے۔ اور حدیث میں بھی موجود ہے، رات کو اگر کسی کی اچانک آنکھ کھل جائے وہ یہ کلمات کہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ رب اغفر لی، یہ کلمات کہہ کے کہتا ہے رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ فرمایا اگر اٹھ کے وضو کر لے، نماز پڑھ لے، اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ یہ کلمے اتنے قیمتی ہیں، ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، یہ تو کل پتا چلے گا نا۔ الحمدللہ تملا المیزان، لوگوں ایک دفعہ الحمدللہ کہنا یہ ترازو کو بھر دے گا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس پلڑے میں ڈال دیے جائیں وہ پلڑے نہیں بھریں گے، اور یہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا جو ہے ترازو کو بھر ڈالے گا۔ لیکن کون سا الحمدللہ؟ وہی جو میں نے ابھی ذکر کیا، تھوڑا سا سوچ کر یا اللہ میرے اوپر، کائنات کے اوپر جو کچھ انعامات ہے تیرے ہیں، یا اللہ تیری ہی تعریف بیان کرتا ہوں، کسی اور کی تعریف نہیں کرتا، کسی کا شکریہ بیان نہیں کرتا، یا اللہ صرف اور صرف تیرا ہی شکریہ بیان کرتا ہوں۔ یہ تمام کلمات کے معنی یاد کر کے تھوڑا تھوڑا سا غور کر کے ان کلمات کو پڑھیے، یہ کلمات بڑے قیمتی ہیں، ان لمحات کو بہت زیادہ قیمتی بنا دیں گے، تصور نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ ان لمحات میں کیا اللہ تعالیٰ حسن اور کیا خوبی پیدا کر دیں گے جب آپ ان کلمات کے ساتھ اپنی زبان کو جو ہے وہ تر کر لیں گے۔ اور بھی بے شمار کلمات ہیں، وقت تھوڑا سا ہے، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر کو اپنا معمول بنائیے اور خصوصی آخری لمحات میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر کیجیے۔ اور ایک اور عمل جو ان لمحات میں کرنے والا ہے وہ ہے تھوڑا سا علیحدہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر اپنے ماضی میں کیے ہوئے، زمانہ جاہلیت میں کیے ہوئے اپنے گناہ، اپنے کہہ لیجئے سیاہ کرتوت، انہیں یاد کر کے اللہ کی کتنی رحمت ہے، میرے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، آپ کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ میرے عیبوں کا آپ کو نہیں پتا، آپ کے عیبوں کا مجھے نہیں پتا۔ کچھ معاملات کبھی کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہے اور اللہ جانتا ہے یا وہ انسان جانتا ہے۔ یہ کتنی بڑی میرے رب کی رحمت ہے
وہ अपने बंदों को जलील नहीं करता, वो रुसवा नहीं करता जब तक इंसान हदों को ना फलांग जाए। जब इंसान अल्लाह की हदों को फलांग जाता है फिर अल्लाह उसे तबाह कर देता, फिर उसे जलील कर देता और रुसवा कर देता है। लेकिन अल्लाह ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाल रखा है। किसी ने कहा था अगर हमारे ऐब एक दूसरे के सामने जाहिर हो जाए शायद हम एक दूसरे का चेहरा भी ना देखें। हैं ये ऐसा बनता है, ये इस तरह के काम करता है, ये तो देखने के काबिल नहीं है। हम एक दूसरे को देखना भी गवारा न करें। लेकिन वो मालिक किस कदर गफूर रहीम है, किस कदर सत्तारुल अयूब है, ऐबों के ऊपर पर्दा डाल रखा और किसी के बारे में बतलाता नहीं। तूने किया है तेरे रब को पता है, जाओ अपने रब के साथ बैठकर यहीं पे मामला जो है वो खत्म कर लो और अल्लाह से माफी मांग लो, अपने गुनाहों की माफी मांग। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगिए। इन आखिरी लम्हात में गुनाहों की माफी मांगने से अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ गुनाह माफ कर देता है बल्कि इंसान के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। सारे के सारे बड़े से बड़े गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। और ये वाकया मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूं। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे को बुला के कहेंगे तूने फलां जुर्म नहीं किया, वो नजर झुका लेगा और बड़ी आहिस्ता सी आवाज में कहेगा हाँ किया था। फिर दूसरा, फिर तीसरा, चंद गुनाह गिनाने के बाद छोटे छोटे अल्लाह ताला कहेंगे फरिश्तों इसने ये जो गुनाह किए थे ना उनको नेकियों में बदल दो। इंसान गर्दन उठा लेगा, या अल्लाह वो फलां बहुत बड़ा जुर्म वो तो तूने जिक्र ही नहीं किया, मैंने तो फलां गुनाह भी किया था। अल्लाह अकबर, क्या ऐसा भी माजरा होगा? वो अल्लाह जो जब्बार है, कहार है, शदीदुल बत्श है और उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, उसके सामने अपने गुनाहों को खुद बयान करेगा या अल्लाह ये भी मैंने गुनाह किया। हाँ, जिस वक्त उसकी रहमत इंसान को घेर लेगी। और वो रहमत कब घेरनी है? जब इंसान ने दुनिया में तौबा की है। अगर मुआफी मांगी है तो अल्लाह तबारक तआला के यहाँ इंसान जाकर भूल जाएगा मैंने तौबा की है कि नहीं की। उसे यही याद रहेगा नेकियां तो थोड़ी सी हैं, गुनाह बहुत ज्यादा कर रखे हैं, लेकिन तौबा कबूल हो चुकी होगी। अल्लाह ताला उसको गुनाह याद करवाएंगे तो फिर वो खुद जिक्र करेगा या अल्लाह वो फलां गुनाह, या अल्लाह उसको भी नेकियों में बदल दे। तो फरमाया लोगों ये तौबा जो है वो इंसान के गुनाहों को नेकियों में बदल देती है। ये तौबा कीजिए। कौन सी तौबा? सादा सी बातें हैं। आज के जुमे में कोई खास बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं कहूं कि इससे ज्यादा कोई खास है ही नहीं तो इसमें भी कोई मुबालगा। ये वही बातें हैं, लेकिन यही बातें निजात का जरिया हैं, यही कामयाबी का जरिया है। लोगों तौबा क्या है? अस्तगफुरुल्लाह 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 अस्तगफुरुल्लाह। 5 तस्बीहें पढ़ ली, 10 तस्बीहें पढ़ ली, मैंने 1000 मर्तबा विर्द कर लिया, ठीक है, ये अजर का बायस है, लेकिन ये तौबा नहीं है। ये जिक्र कहा जा सकता है, अल्लाह की याद कही जा सकती है, ये तौबा नहीं है। तौबा का मतलब पता क्या है? इंसान तन्हाई में बैठे और तन्हाई में बैठकर अपने गुनाह को याद करे। जब वो गुनाह याद आ जाए इंसान के जिस्म पे लर्जा तारी हो जाए। हैं मेरा रब जो 7 आसमानों और 7 जमीनों को पकड़कर हाथ में ले लेगा, वो रब मैंने उसकी नाफरमानी की है, वो मेरी शहरों को पकड़ ले, मेरा गला दबा दे, मैं सांस कहां से लूंगा, वो मुझे फालिज पैदा कर दे, मैं अपने हाथों को हरकत कहां से दूंगा, मैं अपनी टांगों को हरकत कहां से दूंगा, मैं अपने दिमाग से सोचूंगा कैसे? वो अल्लाह ताला मैंने उसकी बगावत की है। रोना आ जाए, पेशानी पे पसीना आ जाए, जिस्म कांपने लगे, इस तरीके से थोड़ी सी मुआफी मांगिए। फिर देखिए अल्लाह तबारक तआला गुनाहों पे मुआफी का कलम नहीं फेरते, बल्कि वो कहता है मुझे उससे कहीं ज्यादा खुशी होती है जिसको मौत देखने के बाद फिर अपनी सवारी मिल जाती है, पानी मिल जाता है और खाना मिल जाता है, इतना खुश होता है। और वो कहता है या अल्लाह तू मेरा बंदा तो मैं तेरा रब। उसे पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है, इतना खुश होता है। फरमाया जब मेरा बंदा वाकई मुझसे तौबा करता है मैं इससे भी ज्यादा खुश होता हूं, मैं इससे भी ज्यादा खुश होता हूं। फरमाया लोगों वो आंख जिस आंख से अल्लाह के डर से आंसू निकल पड़ता है, वो एक छोटा सा आंसू का कतरा अल्लाह की वो ठाठें मारती हुई और समंदर, वो जहन्नम की जो आग है जो इतनी जलाई हुई है, इतनी जलाई हुई है कि हजारों मील ऊपर से भी गुजर जाए
तो वो जानवर और परिंदा जो है वो भून कर नीचे गिर पड़ेगा। वो जहन्नम जिसकी ताकत हम नहीं रखते उसको बर्दाश्त करने की। ये दुनिया की माचिस की एक लकड़ी जो है हल्की सी, इसको जला दिया जाए और इसको जो है वो उसके ऊपर उंगली रख दी जाए, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मामूली सी आग, अगर भांबड़ मचा दिया जाए उसके तो करीब नहीं जाया जाता। फरमाया जहन्नम की आग तो इससे 69 गुना ज्यादा है, वो आग उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फरमाया आंसुओं का एक कतरा जो अल्लाह के डर से अलहदा बैठकर तूने गिरा दिया है, ये जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी हो जाए। ये जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी हो जाए। ये इत्काफ में बैठ जा, कमरे के एक कोने में बैठ जा, बिस्तर में घुस जा और तन्हाई में बैठ जा, अपने रब को याद कर ले और याद करके अपने गुनाहों को याद कर ले। या अल्लाह वो गुनाह किया, गलती हो गई, या अल्लाह वो भी किया, तीसरा भी किया, 10वां भी किया, या अल्लाह 1000 किए हैं, या अल्लाह माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं, अज़म करता हूं आइंदा नहीं करूंगा, या अल्लाह आज माफ कर दे। जिंदगी ना बदल जाए तो मेरे पास आज, इंसान की काया ना पलट जाए तो फिर देखिए। लेकिन ऐसी तौबा कीजिए तो सही, ऐसी माफी तो मांगिए, ऐसा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़कर देखिए तो सही, दिल के अंदर कैसे नूर पैदा होता है, कैसे रोशनी जो है वो पैदा होती है। वक्त गुजर गया है, एक आखिरी बात है और वो आखिरी बात ये है, आखिरी लम्हे हैं, ये जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, ये रमजान के नहीं है। मालूम नहीं कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाना है। लोगों अपने भाइयों को माफ कर दो, लोगों अपने अजीजों अकारब को माफ कर दो, अपने वालिदैन को माफ कर दो, अपनी औलादों को माफ कर दो, अपनी बीवी को, अपने शौहर को माफ कर दो। अल्लाह तबारक व तआला मुआफ करने वालों को पसंद करता है और मुआफ करने वालों को खुद भी माफ फरमा देता है। माफ कर दो, माफी से बड़ी कोई नेकी नहीं है। हुस्न खुलक ये क़यामत के दिन सबसे वजनी चीज होगी। फरमाया हुस्न खुलक में ये सबसे बड़ा अच्छा अखलाक है कि किसी की ज्यादती पे उसको माफ कर दिया जाए। इंसान ताकत रखता है बदला लेने की, लेकिन फिर माफ कर देता है, कोई बात, जाओ मेरे अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दी। फरमाया तुम बंदे को माफ कर दो, आसमानों पे रब जो है वो तुम्हें सारी जिंदगी के गुनाह तुम्हारे माफ कर देगा। वो बंदा जिसका मैंने जिक्र किया है कि एक आदमी अल्लाह के दरबार में पेश होगा, कोई नेकी नहीं है, ईमान होगा यकीनन, लेकिन और कोई नेकी नहीं है, बुराइयां ही बुराइयां हैं। अल्लाह पूछेंगे कोई नेकी है? कहेगा या अल्लाह नेकी तो कोई नहीं है। कहा को तलाश करो, कहा एक है, एक मैं छोटा सा काम किया करता था। कहा वो क्या किया करता? कहा या अल्लाह मैं कर्ज दे देता था, वो वापस कर देते मैं ले लेता, ना करते तो मैं छोड़ देता था। अपने नौकरों को, अपने सेक्रेटरी को बोलता जाओ फलां बंदे से कर्ज लेना लेकर आओ, अगर वो दे दे ले लेना, अगर वो कहे कि मेरे पास इतने नहीं है थोड़े हैं, वो थोड़े ले आ, बाकी छोड़ देना। अगर वो कहे मेरे पास नहीं है वो सारे छोड़ देना। या अल्लाह मैं सारे छोड़ दिया करता था। मेरे बंदे तू क्यों करता था, ऐसा क्यों करता था? कहा या अल्लाह मैं इसलिए माफ कर देता था, शायद मेरा रब जो है वो मुझे माफ कर, शायद मेरा रब जो है वो मुझे माफ कर। पर मैं जाओ मेरे बंदे, फिर मैंने तुझे माफ कर, मैंने तुझे माफ कर, तूने मेरे बंदों को माफ किया है, मैंने तुझे माफ कर दिया। अफसोस के साथ, बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ता है, हम भाई भाई, बेटे बाप के साथ, माँ के साथ, करीबी रिश्तेदारों के साथ चंद रुपए के इवज में हम दुश्मनियां पाल लेते हैं, मरने मारने पर तुल जाते हैं, अपने भाई को 2 रुपए छोड़ने के लिए तैयार, अपने भाई को 2 रुपए छोड़ने के लिए तैयार नहीं। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला फिर गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। आज हम उसका कहा नहीं मानते, ये रब का हुक्म है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास, लोगों गुस्से को पी जाओ और लोगों को मुआफ कर दो। जन्नत मैंने इन्हीं लोगों के लिए तैयार कर रखी है और किसी के लिए मैंने तैयार नहीं की है। फरमाया सोमवार के दिन, जुमेरात के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे को माफ करते हैं जिसने शिरक नहीं किया। मुशरिक को तौबा के बगैर माफी नहीं होती। फरमाया हर सोमवार, हर जुमेरात हर बंदे के लिए माफी का ऐलान होता है, लेकिन उस बंदे के लिए कोई माफी नहीं होती जो अपने भाई से लड़ा हुआ है और उसके साथ सुलह नहीं करता। फरमाया फरिश्तों को हुक्म होता है इनके मामले को पीछे कर दो, जब तक ये सुलह नहीं करते इनको माफ नहीं करना, जब तक ये सुलह नहीं करते इनको माफ नहीं करना। लोगों माफ कर,
अपने भाइयों को माफ कर दो। जिंदगी का कोई पता नहीं, जब इंसान चला जाता है फिर कहता हो मैंने तो उससे माफी मांगनी थी, अब वक्त गुजर गया, अब पता नहीं अल्लाह की सुपुर्द वो माफ करता है कि नहीं करता, वो उसका मामला है। जिंदगी में जिंदगी का कोई सा नहीं है, कोई वसाक नहीं है, पता नहीं है कब चली जाए। इसलिए ये आखिरी लम्हात, रमजान के लम्हात हमसे तकाजा करते हैं, लोगों अपने बाप को माफ कर दो। लोग तो दुश्मनों को माफ कर देते हैं, अपने माई बाप को माफ कर दो, अपने भाइयों को माफ कर दो, अपने बीवी बच्चों को माफ कर दो। किसी के ने ज्यादती कर रखी है उसको सीने से लगा लो, उसको करीब कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ कर देगा। ये चंद एक बातें थी जो बहुत जरूरी हैं, इन आखिरी लम्हात में करने वाली हैं, और ये सारे ही काम जो हैं इंसान की बख्शिश का जरिया बनने वाले हैं, जन्नत में दाखिला देने वाले हैं और जहन्नम से आजादी दिलवाने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें ये सारे काम करने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे, और आखिरी लम्हात में अल्लाह ताला हमारे सबके गुनाह जो है वो माफ फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।